السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ یہ نئی ویڈیو جس کا آپ سے وعدہ کیا تھا میں نے کہ مریخ جو برج سرطان میں جا رہا ہے اس کے افیکٹ دنیا پہ، پاکستان پہ اور لوگوں پہ کیا آئیں گے۔ پہلے میں بتاؤں گا جیو پالیٹکس، پھر پاکستان، پھر عمران خان صاحب اور جو سیاست کے حوالے سے جو بھی ہوگا۔ خواتین و حضرات، یہ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو مارچ جا رہا ہے یہ کیا ہے۔ یہ جذبات، بلڈ، دنگا، فساد، سرجن، پولیس، فوج، لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز، آپ کا پراپرٹی موویبل، پلس لوہے سے متعلقہ چیزوں کا بھی ایک حد تک، یعنی ویکل سے بھی اس کا ایک تعلق بن جاتا ہے۔ اور پلس یہ اس کا منیمم، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ اس کا سب سے جو لیس پروفیشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بوچر، قصائی کا، اور میں اس کو کہتا ہوں جلاد فلک۔ اب یہ اس کی فطرت ہی یہی ہے، ایروگینسی، اسٹبرنس، غصہ، یہ چیزیں کرتا ہے۔ ابھی یہ اپنی فطرت کے خلاف اس کی رفتار جو ہے وہ بہت مدھم چل رہی ہے۔ یہ ابھی جائے گا برج، بلکہ جا چکا ہے، 20 تاریخ کو یہ چلا گیا ہے۔ یہ جس دن ترمیم آئی ہے اس دن یہ گیا ہے 20 تاریخ کو، اور یہ وہاں رہے گا تقریباً، اللہ آپ کا بھلا کرے، جو ہے برج سرطان میں رہے گا، پھر کینسر سے واپس جیمنائی میں آئے گا، تو یہ ریٹوگریڈ کرے گا، وہاں اس کے افیکٹ کچھ اور ہوں گے، اور پھر یہ واپس دوبارہ جو ہے برج سرطان کینسر میں جائے گا۔ تو یہ 6-7 مہینے جو ہے نا آئندہ، یہ بڑے عجیب ہوں گے پوری دنیا کے لیے۔ اور یہ دیکھیں اس کی فطرت کا تقاضا یہ کہ یہ سوچتا نہیں ہے، یہ غلط ہے، سوچنا چاہیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، اور یہ ڈائریکٹ ایکشن ود ایگریشن کرتا ہے، مگر چونکہ اب اٹ سیلف یہ خود بہت ہی کمزور پوزیشن میں آ چکا ہے، حالانکہ اس کے دوست کا گھر ہے لیکن یہاں پہ یہ ملیچ مانا جاتا ہے۔ ملیچ کہتے ہیں ہم سب سے بدترین جگہ پہ، تو وہاں پہ یہ مارس آ گیا۔ اب آپ کو دنیا میں نظر آئے گا لوگوں کے بھرم، ملکوں کے بھرم ٹوٹیں گے، جو وہ اہنکار جسے کہتے ہیں نا، وہ چیزیں، ایگو ٹوٹتی ہیں، اور اوپر سے جو ادر پلانٹ کی پوزیشن ہے وہ بڑی خطرناک ہوئی ہے۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میں ڈراتا نہیں ہوں، لیکن آگاہی دینے کی بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے سب پہ کوشش کرتا ہوں۔ اس وقت آپ یہ دیکھیں سن ڈیویلیٹڈ ہے حبوت میں، اور گرو اور جوپیٹر الٹا ہو چکا ہے، سیٹرن الٹا چل رہا ہے، پلس یہ جو مارس پہنچے گا سرطان میں تو اس پہ راہو بھی دیکھ رہا ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، جو یہ سیٹرن بھی الٹا اور جوپیٹر بھی الٹا سے مراد ریٹوگریشن کے اندر رجت میں ہے، تو یہ اچھے حالات دنیا میں مجھے نظر نہیں آتے۔ اللہ کرے، اللہ کرم کرے، لیکن میرے لحاظ سے کسی بھی طور پہ اچھا نہیں ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے، اب عام لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وائلنٹ ہو جاتے ہیں لوگ، ایکسیڈنٹ ہونے لگتے ہیں، بات بات پہ جھگڑا کرنے لگتے ہیں، اور خواہ مخواہ کا غصہ آنے لگتا ہے۔ اوائڈ کرنا چاہیے اس دور میں اس کو۔ اور اس میں سب سے خطرناک جو اینگل مجھے نظر آتا ہے نا، دیکھیں وہ ہے سیٹرن، اور ابھی جب یہ اب تو چلا گیا، اب یہ سیٹرن کو دیکھے گا، یہ ہے شڈاشٹک یوگ، 6-8 کا تعلق، یہ خطرناک ہوتا ہے، تو یہ دنیا کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اس دور میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، اب دیکھیں قدرتی آفات، نیچرل کلیمٹی، ارتھکوئک، زلزلے، طوفان، ہریکینز، اور اچانک حادثہ ہو جانا، پانی میں جہازوں کا تباہ ہو جانا،
किसी जहाज का आग लग के क्रैश हो जाना, ये तमाम चीज़ें, ट्रेनों के हादसे, एक्सीडेंट बढ़ जाते हैं रोडों के ऊपर और आग फौरन कैच करती है। तो ये अच्छा टाइम नहीं होता किसी भी तौर पर दुनिया के लिए। फिर प्लस सिर्फ एक प्लैनेट नहीं, अदर प्लैनेट्स की जो इस वक्त पोजीशन चल रही है ना, वो अच्छी नहीं है। अब आप एक चीज़ याद कीजिए, ज़ोहल की जब मैंने सैटर्न की बनाई थी और जुपिटर की भी बनाई थी, तो मैंने कहा था जो ये समझ रहा है कि उसकी मुलाजमतों में पक्की हो जाएगी, तोसी हो जाएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि कर्म कारक सैटर्न उल्टा चल रहा है इस दौर में, होती नहीं, वो आपने देख ली। आज मैं नाम भी ले लेता हूँ काजी साहब का, आपने देख लिया क्या हुआ, कितनी कोशिशें की मगर रिजल्ट क्या आया? क्यों? क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन वो नहीं चल रही थी। अब मैंने आपको ग्रहण की वीडियो पे कहा था, ये हेड ऑफ स्टेट के लिए, हुकूमत के लिए बहुत बुरा होता है। और इन्होंने जिस दौर में ये तरमीम बनाई है ना, पता नहीं कौन लोग इनको बोलते हैं, मेरी तो समझ में नहीं आता। मुहूर्त इतना गंदा जिसकी कुछ हद नहीं, और हालात किसी तौर पे भी मुनासिब नहीं। यानी आप ये देखें, अभी तो मैं लगन पे नहीं जा रहा, आप ट्रांजिट के प्लैनेटरी पोजीशन देखें, क्या दुनिया में होता नजर आ रहा है। अब ये क्या होगा? ये इजराइल, हमास, फलस्तीन, लबनान, ईरान की जंग, यूक्रेन वाले वॉर, इनमें अचानक शिद्दत आ जाना, आहिस्ता आहिस्ता, ये तो मैं बहुत पहले कह चुका हूँ, आहिस्ता के वर्ल्ड वॉर जो है वो ऐसे नहीं स्टार्ट होगी। मैंने कहा था आहिस्ता आहिस्ता पॉकेटों में होगी, फिर एकदम ये जाके फैलना शुरू हो जाएगी। तो वो आप देख रहे हैं। और 2 महाल जो नए खुलने थे वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब ये कि इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इसी दौर में अमेरिका के इलेक्शन आ रहे हैं। अमेरिका के इलेक्शन पे मैंने बहुत काम किया जब बाइडन थे। कमला हैरिस आई थी, इनकी मुझे टाइम ऑफ बर्थ नहीं मिल रहा था, अब मिला है, जो अल्लाह जाने वो बेहतर है या गलत है, लेकिन मुझे लगता है वो काफ़ी हद तक ठीक टाइम ऑफ बर्थ है। बाइडन के मुकाबले में बहुत अच्छी है, मगर मैंने जब उस वक्त कहा था 2021 में कि जब ट्रम्प को लोग भूल चुके थे, मैंने कहा था ट्रम्प आएंगे और छाएंगे, तो मेरे हिसाब से ट्रम्प की जो है आना, उनका जीतना, वो अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी तो मुझे भरपूर तरीके से नज़र आ रहा है। मगर होगा क्या? अगर आपको मेरी वीडियो याद है तो मैंने कहा था कि इस दफ़ा अमेरिका के इलेक्शन नॉर्मल नहीं होंगे। अगर ट्रम्प साहब सीधे सीधे आ गए, जीत गए, और पीछे से कोई चालाकियां ना हुई जो वहाँ की डीप स्टेट करेगी, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं राहु की पोजीशन देख रहा हूँ, तो फिर वो गंद होगा अमेरिका में, वो गंद होगा जो आप लोगों ने तसव्वुर भी नहीं किया। और मामला कोर्ट में भी जा सकते हैं, मामला रोडों पे आ सकते हैं। ये मैं अमेरिका के लिए बोल रहा हूँ। मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी ट्रम्प इज विनर। मुझे ज़बरदस्ती वहाँ की डीप स्टेट वो कर दे वो अलग बात है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें सेटल डाउन नहीं हो पाएंगी अमेरिका में। तो ये अमेरिका के इलेक्शन का भी आपको बता दिया। तो ख़वातीन हज़रात, जहाँ तक एक चीज़ मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर सिवाय मेरे इस यूट्यूब चैनल के अलावा तमाम चीज़ें फेक हैं, चाहे वो खुसूसन फेसबुक हो, मैसेंजर हो, लिंक्डइन हो, टिकटॉक हो, कोई भी कनेक्टिविटी अलावा यूट्यूब चैनल के, सब फेक है। उस पर अप्रोच ना कीजिएगा। मुझ तक अप्रोच करने का एक तो ARY डिजिटल पे जब मैं शो करता हूँ हफ्ते की सुबह, इतवार की सुबह, उस वक्त कॉल कर सकते हैं, या मेरा ऑफिस है PC होटल कराची, वहाँ का नंबर नीचे चल भी रहा होता है यहाँ टिकर पे, और उसके नंबर मैं आपको बता देता हूँ कोड के साथ, 021-3568-5501 और 021-3568-5021। पहला नंबर जो है वो डायरेक्ट है, जो 3568-5501 है। दोपहर के 2:30-3 बजे से लेकर शाम के 6:30 तक आप मेरे असिस्टेंट से प्राइवेट कमर्शियल कंसल्टेशन के लिए
अपॉइंटमेंट ले सकते हो। जो ओवरसीज़ करें उनसे दरख्वास्त है वो कहे हुमायूं साहब को वीडियो पे दिखा दीजिए, आप भी मुझको देख लें, मैं भी आपको देख लूँ, और विद इन पाकिस्तान भी अगर किसी को डाउट होता है तो वो कर सकता है। तो ख़वातीन हज़रात, आपने देखा ये जो मैंने आपसे कहा था कि देखें कैसी हलचल हो रही है पाकिस्तान में। और एक चीज़ और ज़हन में रखिएगा, ये जो इन्होंने ये सब गवर्नमेंट ने तरमीम की है ना, इसका टाइम बड़ा गलत होगा, और बहुत सारी चीज़ें आपको मुस्तकबिल में नज़र आएंगी कि ये किसके ऊपर बाउंस बैक करती है, ये अपनी आंखों से देखिएगा। अब मैं आपको एक डिटेल से थोड़ी चीज़ें बताता जाता हूँ। पाकिस्तान के लिए देखें, मार्स जो है वो हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, और मार्स का ख़राब हो जाना अच्छी बात नहीं होती। ये अवाम, और सामने जो मैंने कहा ना सैटर्न और मार्स है, ये अवाम में गुस्सा, नफ़रत, झंझलाहट और एकदम उबाल में आ जाना। कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए जो उससे आदमी पागल या बेकाबू हो जाए, जुनूनी हो जाए, इन चीज़ों के इम्कानात अगर पहले 60% थे तो अब 90-95% पे आ गए। इसीलिए मैं कहता हूँ सोच समझ के कोई भी डिसीशन लें। मैं वो जो फैसला साज हैं उनकी बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये कि इसमें एक चीज़ और भी होती है कि जो अब देखें मार्स क्या है, मार्स है क़ुव्वत, फोर्स, और सैटर्न क्या है, अवामुन्नास, पब्लिक, मासेस। तो ये चीज़ जब आमने सामने आएगी तो फिर इसके नताइज क्या होते हैं। और आपको मालूम है जो एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन चल रही है, और ये कोई 1 महीने या 10 दिन के लिए नहीं है, ये अभी चलेगी 6-7 महीने, आएगा फिर जाएगा मार्स। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइम होगा मेरे हवाले से। और दुनिया में जंगों में शिद्दत, पूरी दुनिया की बात करो, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, यूक्रेन, हर जगह पूरे सबको ले लें। और एक और चीज़, ये तो मैंने अमेरिका का बताया, पाकिस्तान के लिए मैंने जो आपको कहा, लोगों में गुस्सा, तशद्दुद बढ़ता है। अब मैंने हुकूमत के लिए तो कहा, अगर हुकूमत से मुराद आप ये ले लें कि हुकूमत से मुराद जो है, ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब वही हेड ऑफ स्टेट है, तो मुझे उनके लिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये टाइम अच्छा नहीं लगता। और ये दौर में उनके लिए कोई भी बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। और जो मुझे लगता है, मसलन हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये कि जो मेरी कैलकुलेशन मुझे बताती है बहुक्म अल्लाह, वो ये बताती है कि इस दौर में अचानक कोई चीज़ें तब्दील हो जाना। अब मैंने इमरान खान साहब का भी जायचा देखा, तो उनका वैसे तो टाइम अच्छा शुरू हो चुका है। इमरान, चले इन पे बाद में आता हूँ, पहले इसको ख़त्म कर लूँ। तो शहबाज साहब के लिए अच्छा नहीं है। मेरे, आपको याद है इलेक्शन से पहले मैंने कहा था कि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी की किस्मत है वो अल्लाह के बाद एक बंदे की वजह से चल रही है, वो है बिलावल भुट्टो। उनकी कुंडली के अंदर वो योग बना हुआ था, वो टाइम अच्छा चल रहा है, इस वजह से पीपल्स पार्टी को प्रेसिडेंटशिप भी मिल गई। वो सही है, जरदारी साहब का अपनी जगह, लेकिन बिलावल का अभी है कुछ थोड़ा अरसा बाकी है। तो इस दौर में हो सकता है उनके लिए कोई बहुत अच्छी चीज़ या बड़ी चीज़ हो जाए बिलावल भुट्टो साहब के लिए, क्योंकि इनका अभी केंद्र की दशा चल रही है और अच्छे अपने घर का पड़ा हुआ है, तो ये अच्छा हो सकता है। लेकिन ओवरऑल उनके लिए अच्छा टाइम है। आप देख लें, उसी वजह से हाइप भी मिली ये तरमीम के हवाले से उनको। और दूसरा, अब आ जाता हूँ जो आप सब लोग सुनना चाह रहे हैं, इमरान खान साहब। ये देखें, इमरान खान साहब का जायचा है। इमरान खान साहब के लिए मैंने पहले भी कहा था कि 24 सितंबर 2024 से उनकी अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी टाइम तब्दील हो गया, उनकी एक अच्छी दशा शुरू हुई है। और मैंने एक बात कही थी, मैं आज भी उस बात पर कायम हूँ, होना ना होना मेरे रब का इख्तियार है, कि मैक्सिमम दिसंबर, मैक्सिमम वरना नवंबर तक आपको उनकी जेल से बाहर आने के हवाले से कोई भी न्यूज़ मिल सकती है। और मैंने कहा था उससे पहले
یہ جب اکتوبر چلا تھا میں نے کہا تھا عوام روڈوں پہ آئے گی، آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے 4 اکتوبر کو۔ اب میں کیا بولوں، پھر وہ لوگ بولتے ہیں آپ ایسا نہ بولیں، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، پہلے بھی میں نے کہا پی ٹی آئی ایک آدمی کا نام ہے جن کا نام ہے عمران خان، باقی یہ جو ان کی سب تو نہیں لیکن میجورٹی آف جو ان کی سیکنڈ لیڈرشپ ہے، میں اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، کیونکہ اس میں خان صاحب کے ذائقے کے حساب سے اس میں اب وہ پھر بری بات ہو جائے گی، مہذبانہ انداز میں نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ ان کو اپنے ہی لوگ نقصان پہنچاتے ہیں۔ مگر خان صاحب کا یہ اچھا ٹائم چل رہا ہے۔ ہاں ایک چیز میں خان صاحب کو بولوں گا کہ اس دور میں ذرا سا آپ اپنے کھانے پینے اور اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں۔ اس دور میں کیا ہوتا ہے، انسان کے جسم میں ٹاکسک ایلیمنٹ آ سکتے ہیں، تو اپنے کھانے پینے کی بہت احتیاط کیجیے اور صحت کے معاملے میں بہت احتیاط کریں۔ وہ جو جیل سے باہر آنے والی بات ہے وہ تو میں اپنی جگہ اب بھی قائم ہوں، آگے میرا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس وقت ہیلتھ کا ان کو واقعی میں خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ٹرانزٹ میں کچھ پوزیشن ایسی چل رہی ہے جو ان کو تھوڑا سا پرابلم کر سکتی ہے، ہارٹ کا، ہڈیوں کا یا لنگز کا، ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ ویسے وہ فٹ آدمی ہونا تو نہیں چاہیے، مگر ان کو خیال رکھنا چاہیے، کوئی چیز غلط سلط یا کوئی ایسی چیز کھا لینا جس سے ٹاکسیکیشن پیدا ہو جائے، تو یہ چیز خیال رکھیں۔ باقی میں نے کہا تھا وہ تو بات کی بات ہے، پہلے باہر آئیں پھر آگے کی کہانی شروع ہوگی۔ تو میں نے ٹرمپ صاحب کا بھی آپ کو بتا دیا، امریکہ کے الیکشنوں کا بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے، اسی لیے میں کہتا تھا یہ بڑے ان یوزول ہوں گے، اور آپ نے دیکھ لیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب گھر جا رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں میں جو کرم کارک کہتا ہوں نا، جسے معلم فلک، اس دور میں نہیں ہوتی نوکریاں پکی، توسیعاں نہیں ملتی، کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، اور اگر بالفرض محال کوئی کر بھی لے تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں یہ بھی ہو گیا، میں نے حکومت کا بھی، شہباز صاحب کا، ظاہر ہے ہیڈ آف اسٹیٹ وہی وزیر اعظم ہے، ان کا بھی بول دیا، پیپلز پارٹی بلاول صاحب کا بھی کہہ دیا، عمران خان صاحب کا بھی کہہ دیا، اور ان کا میں نے ایک چیز کہی تھی نا، میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں۔ دیکھیں اس بندے کا اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی ایکسٹرا آرڈینری کنڈلی بنائی ہے، یعنی تقدیر دی ہے میرے اللہ نے۔ ایسے لوگ جتنا ان لوگوں کو زندگی میں ملتا ہے اس کا 10 گنا زیادہ اس دنیا کے بعد، یعنی جانے کے بعد اس سے زیادہ عزت اور شہرت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، میں اس سینس میں نہیں کہہ رہا، میں ایک ذائقے کے حوالے سے بتا رہا ہوں، اللہ کرم کرنے والا ہے ان پہ، ظاہر ہے کوئی بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک پہ، عمران خان صاحب پہ بھی، سب پہ میرے پنجتن پاک کے سب پہ کرم کرے، پاکستان پہ۔ تو خواتین حضرات، پاکستان کا بھی میں نے بتا دیا آپ کو، عمران خان صاحب کا بھی بتا دیا، دنیا کا بھی بتا دیا، ویڈیو کیونکہ مجھے کہا گیا شارٹ کریں، تو اوور آل دنیا کے لیے یہ بہت خطرناک، بہت برا ٹائم ہوگا۔ اس کے بعد موقع ملا تو میں آپ کو نتن یاہو اور اسرائیل پہ بناؤں گا، مجھے اس کا ٹائم مل گیا ہے انشاءاللہ تعالی، یعنی اسرائیل کا پراپر ٹائم، جہاں تک مجھے معلوم ہے راہو کی دشا چل رہی ہے، بس میں اس کے تھوڑا سا اور ریسرچ کرنے دیں مجھے۔ اب اس کے بعد اللہ کے کرم سے آپ دیکھ لیجئے، جو بات ماضی میں بولیے، میرے اللہ کے حکم سے کتنی باتیں ہوئی ہیں، ہونی ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور یہ جو میں نے آپ کو بولا نا نوکری کی توسیع، جو ریگولر دیکھ رہے ہیں انہیں یاد ہے، سیٹرن پہ، جوپیٹر پہ، گرہن پہ، یہ میں باتیں دہرا چکا ہوں کہ اس دور میں ملازمت یا توسیع کے حوالے سے نتائج وہ نہیں آتے۔ میں کہتا تھا لوگ سمجھیں گے میرا یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یا میں یہ کر لوں گا، ہوتا اس کا الٹ ہے۔ تو خیر اب میں چلتا ہوں 12 بروج کے اوپر، 12 زوڈک سائن پہ، اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ مہادشا اور انتردشا سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے ہماری ویدک ایسٹرالوجی میں، لیکن یہ ٹرانزٹ کا ایک کافی حد تک افیکٹ آتا ہے، تو وہ سب سے اوپر ہے، اس کے بعد یہ چیز ہے، اور ویکلی جو کرتا ہوں وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو خواتین و حضرات، سب سے پہلے ہمارا برج ہے برج حمل،
एरीज वालों के लिए ये कहूँगा, ये थोड़ा थोड़ा बताऊँगा। सेहत का ख्याल रखें, आप में सुस्ती पैदा हो सकती है, नींद में कमी वाक़ हो सकती है, आपको ऐसा लगेगा आज हो जाएगा काम, कल हो जाएगा, चीज़ें अटकेंगी। ये जो हड्डी गोश्त होता है, इसके मसल्स में कमज़ोरी वाक़ होने लगती है, थोड़ा-सा इंसान अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होता है और रवैयों में झुंझलाहट पैदा होने लगती है। मगर मौक़े आपको मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मगर काम होंगे थोड़ा ताख़ीर के साथ। वालिदा की सेहत का ख़्याल रखिएगा, आग से दूर रहिएगा और घर की अशिया की मरम्मत पे अखराजात हो सकते हैं और ड्राइविंग में बहुत एहतियात कीजिएगा। दूसरे नंबर पे हमारा बुर्ज सौर आपके लिए कम्युनिकेशन में बेहतरी आ सकती है, मगर अपनी गुफ्तगू और अपनी कम्युनिकेशन को गलत अंदाज में इस्तेमाल ना कीजिएगा, वरना प्रॉब्लम आ सकता है। नए आइडियाज़ आएंगे, वलवला पैदा होगा, मगर अगर आप मध्यम अंदाज में चलेंगे तो ज़्यादा कामयाब रहेंगे। सब्र इस्तकामत से काम लेंगे और कामों के लिए पीछे लगे रहेंगे तो काम हो जाएंगे। लड़ाई झगड़ों से दूर रहिएगा। प्रॉपर्टी से आपको ज़मीन जायदाद से फ़ायदा हो सकता है और आपके छोटे डोमेस्टिक या शॉर्ट टाइम विजिट भी हो सकते हैं सफ़र के मामले में। तीसरे नंबर पे है हमारा बुर्ज जौज़ा, आपके लिए यानी जेमिनी के लिए मैं कहूँगा आपके लिए रुपए पैसे का फ़ायदा हो सकता है, मगर अपनी गुफ्तगू का आपने बहुत बहुत ख्याल रखना है। स्पीच आपके लिए प्रॉब्लम कर सकती है, गुस्से को कंट्रोल करें। माली मामलात में कोई भी फ़ैसला साजी करते हुए 10 दफ़ा सोचिए, वरना नुकसान का अंदेशा हो जाएगा उल्टा फ़ायदे के बजाय। आपके ख़ानदान में कुछ तनाज़ात पैदा हो सकते हैं और थोड़ा सा हासिद लोगों से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अपने दांतों, आँखों, कान, इन जगहों का ख्याल रखिएगा और खाने पीने में एहतियात कीजिएगा। इसके बाद चौथे नंबर पे हमारा बुर्ज सरतान। सरतान वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ का ख्याल रखना है और लापरवाही, कोताही, गफलत से अपने आप को दूर रखें, वरना प्रॉब्लम आ सकते हैं। सब्र और तहम्मुल से काम लें, बच्चों की तालीम और सेहत का ख्याल रखें, गुस्सा और ज़िद बाजी से अपने आप को दूर रखिएगा। पार्टनर से भी थोड़े इख्तिलाफात हो सकते हैं। पांचवा हमारा बुर्ज है बुर्ज असद। लियो वालों के लिए यह कहूँगा कि आपके अखराजात में अचानक इजाफा हो सकता है। ख़ानदान में सेहत के मामले पे कोई आपको जो है अचानक ख़र्चा हो जाए। खुफिया दुश्मन जो है, इनसे थोड़ा ख्याल रखिएगा। झगड़ों से गुरेज और नए कामों का आगाज़ मत कीजिएगा। अच्छाई ये है कि अगर आप अब्रॉड ट्रैवल करना चाह रहे हैं या कोई मजहबी सफ़र करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको बहुक्म अल्लाह कामयाबी मिल सकती है। छठा है हमारा बुर्ज सुमला विर्गो वालों को ये कहूँगा, हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी से फ़ायदा हो सकता है। किसी बासर शख्सियत या वो लोग जिनसे बड़े ओहदों पर फ़ायदे, उनसे कोई आपका फ़ायदा हो सकता है। नया काम, नई जॉब के लिए कामयाबी मिल सकती है, मगर सब्र अगर आपने कायम रखा तो ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। हाँ, सेहत का ख्याल रखें, पेट का, निज़ाम हाजमा का, बड़ी आंत का, प्रोस्टेट का। सातवां हमारा बुर्ज है बुर्ज मीज़ान लिब्रा वालों के लिए कहूँगा, गुफ्तगू का ख्याल रखें, गलत किस्म के ताल्लुकात से अपने आप को दूर रखें। लाइफ पार्टनर की सेहत का ख्याल रखें और अपने बिजनेस पार्टनर के हवाले से अपने माली मामलात का भी बहुत ख्याल रखें। अच्छा, ये दौर थोड़ा सा लिब्रा वालों में जिनसी भूचाल या तलातुम पैदा करता है, तो कंट्रोल करिएगा, क्योंकि इस दौर में कोई गलत किस्म की बीमारी या स्कैंडल बन जाता है। और हार्ट का और निज़ाम हाजमा का ख्याल रखें। आठवां है हमारा बुर्ज अकरब। आपके लिए इस दौर में थोड़ी सी आप अपनी क़ुव्वत में कमी महसूस करेंगे, थोड़ा सा सुस्ती का भी शिकार हो सकते हैं। ये दौर आपको नॉलेज बढ़ाने के लिए, ऑकल्ट साइंस, मजहबी नॉलेज, वो चीज़ें जो जिनमें कोई गहराई हो, वो चीज़ें सीखने का आपको मौका मिलेगा। सफ़र अगर करना चाह रहे हैं तो बहुत ध्यान से सफ़र में तमाम लवाज़मात को पूरा कीजिएगा और कोई भी उसके अंदर कोई किसी की दी हुई चीज़ को कैरी मत कीजिएगा।
मजहबी गुफ्तगू, बहस, इससे परहेज करें, वालिद की सेहत का ख्याल रखें और थोड़ा लोग आपसे जेलस हो सकते हैं मगर घबराइएगा नहीं। नवा हमारा बुर्ज है बुर्ज कौस। आपको अपनी सेहत और शख्सियत का जायज़ा लें और मनफी रुझानात को ख़त्म करें। ड्राइविंग, यूरिनल फंक्शन, प्रोस्टेट ग्लैंड, इन चीज़ों का ख्याल रखें। सेहत और ड्राइविंग दोनों बोल रहा हूँ। सट्टेबाजी से अपने आप को दूर रखिएगा, गलत लोगों से अपने आप को दूर रखें वरना बदनामी हो जाती है इस दौर में। 10वां है हमारा बुर्ज बुर्ज जद्दी। आपके लिए खाने पीने में एहतियात करें। बिजनेस, लाइफ पार्टनर से कोई प्रॉब्लम हो सकता है। ख़ानदान में अपने ताल्लुकात का ख्याल रखिएगा और मतलब ज़रा सा कोई एग्रेशन हुआ या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो बातें बढ़ जाएंगी। आपके जहन में ये आएगा यार मैं शॉर्टकट अपनाऊं और ये काम कर लूं। गलत ट्रैक पर मत जाइएगा, मस्बत ट्रैक पर डालिएगा और थोड़ा सा अपने अफसरान बाला से बहस व मुबाहिसे से गुरेज कीजिएगा। इसके बाद 10वां है आपका अल्लाह भला करे बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन वालों को लिए ये कहूँगा खाने पीने में बहुत एहतियात। बिजनेस पार्टनर से प्रॉब्लम हो सकता है, लाइफ पार्टनर की सेहत अफेक्ट कर सकती है। माली मामलात में बहुत ज़्यादा ख्याल करें। कुछ लोगों को मसलन आपको कुछ लोगों से थोड़ा सा रवैयों की शिकायत होगी यार कि कल तक तो ये मेरे साथ बहुत अच्छे थे, आज इन्होंने अपना रवैया चेंज कर लिया, तो समझ लीजिएगा ये तकदीर का खेल है। गलत रास्ता मत अपनाइएगा, अपने रवैये को मजबूत रखिएगा और अपने हाई अप्स के साथ बहस और मुबाहिसा मत कीजिएगा। 11वां हमारा बुर्ज है बुर्ज दल। आपके लिए कुछ अच्छा कुछ बुरा समझ लें। चलते कामों में रुकावट आ सकती है मगर आपने अगर अपनी फोकसिंग अच्छी रखी तो काम हो जाएंगे। अपने जो सब ऑर्डिनेट होते हैं या नीचे काम करने वाले उनसे कोई प्रॉब्लम मसाइल पैदा हो सकते हैं। आपको हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। हाँ ये भी हो सकता है कोई पुराना मर्ज चल रहा हो तो वो अचानक ख़त्म हो जाए। बहन भाइयों से थोड़े इख्तलाफ हो सकते हैं मगर आपने जज्बात में कोई कदम नहीं उठाना। इसके बाद 12वां हमारा बुर्ज है बुर्ज हूत स्पाइसेस। आपके लिए मैं ये कहूँगा थोड़ा सा हेल्थ का ख्याल रखें। तालीम के मामले में आपने मेहनत ज़्यादा करनी है। कभी कभी आपको इस बात की शिकायत होगी कि मेरी तकदीर उस स्पीड से काम नहीं कर रही जैसे पहले करती थी, मगर कोई बात नहीं, कभी थोड़ा अच्छा कभी थोड़ा बुरा ये होता है। बच्चों की सेहत का ख्याल रखें और एडवेंचर मत कीजिएगा। जिस्म पर कोई चोट आपको लग सकती है, कोई कट लग सकता है, कोई जिससे थोड़ी सी ब्लीडिंग हो जाए। और अपने रुमानवी मामलात का ख्याल रखिएगा। आप जितना मज़हब खैरात अल्लाह के नाम पे करेंगे उतना आपके लिए चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो ख़वातीन और हज़रात, ये मैं जितना बता सकता था बहुक्म अल्लाह आपको बताया कि मरीख जो जा रहा है बुर्ज सरतान में, ये 2-2.5 महीने यहाँ रहेगा, फिर वापस जबनाई में आएगा, फिर ये जाएगा कैंसर के अंदर। तो ये बड़ा तवील अरसा है और ये पूरी दुनिया के लिए अच्छा नहीं होता। और इसमें एक बात और मैं बताऊं आपको, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक। इसमें ये होता है कि जो एक इंतहाई गैर मामूली क़ुव्वत के हथियार या चीज़ें होती हैं ना वो एक्टिवेट हो जाती हैं। आज के दौर में देखा जाए तो वो न्यूक्लियर ही है। तो अल्लाह ना करे कोई ऐसा हथियार या कोई ऐसी जगह के ऊपर कोई धमाका हो जाना, इन चीज़ों के भी ख़तरात होते हैं। और दूसरा, हाँ एक बहुत अच्छी, ये तो मैं सबके लिए कहूँगा कि अभी जब तक मार्स कैंसर में तो ज़रा गोश्त से इज्तनाब कर लें, यानी मीट, रेड मीट इतना अच्छा नहीं होता इस दौर में, क्योंकि ये वो दौर होता है। मैं आपको बता दूं, जब मैं अभी बता रहा था शुरू में इमरान खान साहब के लिए और बिलावल साहब के लिए, तो मैंने कहा था इस दौर में गोश्त में, खाने पीने की चीज़ों में अल्लाह ना करे कोई जहरीली चीज़ हो जाए। इस दौर में जहर, टॉक्सिक चीज़ें, गलत किस्म के जो है काम वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं। तो हर एक को गोश्त खोरी को फ़िलहाल 2-2.5 महीने के लिए कम कर लें तो आपके हक़ में बेहतर है। मैं ये, अब लोग ये ना कहिए तो हलाल चीज़ है, भाई हलाल चीज़ है लेकिन इत्तेदाल में खाएं या वक्ती तौर पे। अब जब इस्लाम में है ना, जब कहीं वबा आए तो जो अंदर है वो बाहर ना जाए, जो बाहर है
وہ اندر نہ گھسے. تو اللہ نے عقل بھی دی ہے، یہ خیال رکھیے. اور یہ اوور آل اچھا دور نہیں ہوتا پوری دنیا کے لیے. تو باقی انشاءاللہ تعالی جتنا بتا سکا کوشش کی، آپ کو بتا دیا. باقی کرے ہو نہ ہو، خالصتاً کلی اختیار اس کا ہے جس کا نام ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا اللہ. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، میرے ملک پاکستان پر اپنا خاص کرم کرے. مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.